So once again, good morning everyone. In today's class, we will begin with first of all, the table. And in the table, I'm going to show you how to find out the values of standard trigonometric angles. The functions of standard trigonometric angles like sine 0 degree, sine 30, sine 45, sine 90, sine 60, and so on. And then after this topic, we'll move on and we will see how to find out the values of any trigonometric function whose angle is more than 90 degree. Let's say, suppose if it is 180 degree, it is 270 degree, if it is 135 degree, how to find out these values? We will see today these topics. So, आज का class अपना basically trigonometric functions of an angle. मतलब किसी भी trigonometric function का अगर angle दिया होगा, तो उसका value कैसे निकालते हैं? This is the topic we are going to discuss today and next class also. And make sure that if your this particular concept is clear, then you will not face any problem further. This is the most important topic. ये जो topic है जो मैं आज कराने वाला हूँ, यही students लोग समझ नहीं पाते. तो basically today's class and the coming 2 classes at least, we will study this topic only. We will see first the process, then shortcut, then again process, then shortcut. मतलब हम लोग बहुत प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद उसका शॉर्टकट्स देखेंगे. पहले हम चीजों को लंबा मतलब पूरा प्रोसेस वाइज कराएंगे, उसके बाद हम उसका शॉर्टकट कराएंगे. So I want everyone to concentrate and switch on your video if you don't have any network issues so that you can interact properly, you can ask your doubts properly, and also I can observe what you are doing, whether you are studying or not. So at least if you are not physically present, at least I can see your body language, I can see your gesture, I can see what you are asking. तो क्या है कि सिर्फ चलो ठीक है फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो लेकिन एटलीस्ट हम देख तो सकते हैं कि चलो तुम क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, तो हम उसका आंसर उसके हिसाब से दे सकते हैं. But if you are just asking without your video on, it is sometimes it becomes very difficult to understand. So please make sure that you keep your video on and let's begin our today's class. So our first topic of today's class is trigonometric functions of standard angles. How to find out the values You have of to write this trigonometric in functions. formula copy, no? Yes, exactly. You have to write in formula copy. So the first thing we will discuss today is how to find out the values of trigonometric functions with standard angles. So let's say, for example, you all know that the standard angles are standard angles are 0 degree. So यहाँ पे मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रो में कॉलम में फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. TF का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin थीटा, cos थीटा, tan theta, and there are 3 more functions we will see, but let me complete these 3 functions first. Standard angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 and 90 degree. These are standard angles. In order to find out the value, see, ये क्लास 10 में भी तुम लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं कि ये कोई नया टॉपिक है, बट फिर भी मैं एक बार बताऊं. सबके जो डिनोमिनेटर है, देखो हम लोग एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है हर जगह. एवरीवेयर you have to write a fraction where I'll keep denominator 4 as it is. There is a reason behind this, why I will just discuss later on. सबके डिनोमिनेटर दोनों 4 रखेंगे. उसके बाद न्यूमरेटर जो है we will start from 0 and then we will move on. I mean we will write all whole numbers, all consecutive whole numbers like 0, 1, 2, 3 and 4. Now write down all these fractions in its simplest form. So what is the simplest representation of 0 by 4? It's 0. I asked only to write down the simplest form. 0 by 4 का simplest form 0 होगा, 1 by 4 का 1 by 4 ये होगा, 2 by 4 का simplest form होगा 1 by 2, ये 3 by 4 और ये 1. उसके बाद जो भी simplest form में आता है इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे. एक ही बात है, अगर तुम इसी का स्क्वायर रूट करो बात बराबर है. Now what is square root of 0?
It is 0. What is square root of 1 by 4? It is 1 by 2 because 1 is a perfect square, 4 is a perfect square. So it is 1 by 2. What is square root of 1? 1 by root 2. 2 is not a perfect square, so it will be root 2. Here we will have root 3. 3 by 2. Divided by 2. Here we will have 1. Okay, next. After we know the values of sine function, now let us see cos function. See, we already know this part that sine and cos functions are complementary. What do you mean by this? It means that अगर मैं sine of 30 degree लेता हूँ suppose, if I write sine 30, इसका value cos 60 के बराबर होगा. ठीक है? This is called complementary angle relationship. मतलब if two angles are complementary, so sine of one angle, cos of the another will be equal. This is called complementary angle relationship. तो मतलब कौन से दो functions का complementary angles का value same आता है? Sine का और cos का. मतलब अगर हम sine of 30 डिग्री ले लें और cos 60 डिग्री निकाले तो दोनों का आंसर सेम आएगा. अगर मान लो 20 डिग्री है और 70 डिग्री है, you know that these two angles are complementary. If I find out cos 20, the value will be equal to sine 70 degree. And similarly, we find that it is same for tan and cot. It is same for secant cosec as well. Secant cosec. So which two functions are complementary? We find that it is sine and cos, tan and cot, and then we have got sec and cosec. So what is the value of cos 0 degree? Cos 0 degree का value किसके बराबर हो गई? It will be equal to what? It will be equal to sine of complementary of 0 degree is 90 degree. तो मतलब sin 90 का वैल्यू जो है वो cos 0 डिग्री का वैल्यू के बराबर है. cos 30 का वैल्यू जो है वो sin 60 का वैल्यू के बराबर है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो sin वाला का जो वैल्यू है इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. So here we find that we have 1 by root 2, here we have 1 by 2, and here we have 0. All right, everyone. Then next is tan function. You know that tan function is dependent on the values of sine and cos. साइन और cos के वैल्यू के ऊपर ये डिपेंडेंट है. मतलब अगर हम ये बोले कि tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो इट विल बी sin 0 डिग्री का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos 0 डिग्री का वैल्यू. तो 0 by 1 कितना हो जाएगा? 0. अगर हम 0 को 1 से डिवाइड कर दे तो आंसर 0 आएगा. व्हाट इज 1 by 2 by root 3 by 2? 1 by 2 divided by root 3 by 2 is 1 by root 3. Then we have 1. Here we have root 3. And the last we find that 1 by 0 is what? It is undefined. Undefined means I cannot represent with any value, any number. So that's why this is written as undefined. Or symbolically we can use, symbol you can use to represent undefined. Okay, so these are the things you all know in class 10 also, but I want everyone to again rewrite in your formula copy so that you have in your copy, and those who have got doubt, the doubt gets clear. So copy it first. Now we have cosec function. See, cosec function is nothing but reciprocal of the values of cos or the sine function. So 0 by 1 का reciprocal क्या हो जाएगा? It will be what? 0 by 1 का reciprocal क्या हो जाएगा? Undefined. Undefined. 1 by 2 का reciprocal 2 लिख देना. ये हो गया root 2. ये हो गया 2 by root 3. ये हो गया 1 का 1 किलो. 1 by 1 का reciprocal. Similarly sec का आंसर होगा cos का reciprocal. तो ये 1 हो जाएगा. 2 by root 3, root 2, 2, and what is 0 by 1 का reciprocal? 0. 0 by 1 का reciprocal 0 होगा. Sure? 1 by 0 undefined. ठीक है. Next chord function. सर वो अनडिफाइंड में इंफिनिटी का सिंबल दे सकते हैं क्या? अनडिफाइंड लिखो. अभी हम बताएंगे इंफिनिटी ये सब क्या होता है आगे अच्छे से. अभी अनडिफाइंड लिखो. नेक्स्ट cot थीटा. cot थीटा जो है tan का रेसिप्रोकल होगा. तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? Sec 90 डिग्री क्या होगा? क्या चीज? ये अनडिफाइंड. तो सर हम लोग जब सर साइन में किए थे सर तब 0 क्यों सर 0 by 1 में सर tan 0 डिग्री 0 क्यों हुआ? क्या चीज tan 0 डिग्री सर sin 0 डिग्री तो 0 होता है ना. sin 0 डिग्री 0 होता है और tan और cos 0 डिग्री 1 होता है. तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 0. तो सर फिर
sec 90 डिग्री अनडिफाइंड कैसे हो गया सर? वो भी तो 1/0 ही है। sec 90 डिग्री क्या? sec 90 डिग्री। अच्छा एक बात सर बताओ, sec cos 90 डिग्री नहीं सर, cosec 90, cosec 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री ना, तो एक बात बताओ, जीरो है ना, हाँ सर। ठीक है। तो सर 0 अगर बाई हम 1 मान लो, अगर हम मान लो जीरो का रेसिप्रोकल करें, जीरो का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो आंसर क्या होगा बता सकते हो तुम? 1/0। 1/0। अब एक काम करो, 1/0 को मतलब 1 को 0 से डिवाइड कर दो। एक बार डिवाइड करो तो थिंक ऑफ एनी नंबर जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, हाँ थिंक सर ऑफ आप, एनी। हाँ सर समझ गए। ठीक है, ठीक है, अनडिफाइंड। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड देन लास्ट यस, ये वाला बचा हुआ, तो tan एंड cot 90 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, cot 90 क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर मान लो 1/0 का अगर हम 1/0 को अनडिफाइंड लिखते हैं, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ तो? 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। सो दैट्स व्हाई प्लीज मेक श्योर दैट 0/1 क्या हो, आई मीन अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ cot 90 डिग्री इज हाउ मच? 0। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग व्हिच इज 1/0 को अनडिफाइंड लिखते हैं, तो अगर हम बोलेंगे रेसिप्रोकल करो तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0/1, और 0/1 का आंसर क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए हम लोग cot 90 का वैल्यू tan 90 का रेसिप्रोकल होगा, तो tan 90 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एवरीवन प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। So cot 60. एक्चुअली मैं इसको इसको मैंने रेसिप्रोकल किया ही नहीं, ठीक है, ये Oh. भूल गया। ये गलती से वो क्वेश्चन पूछने लगा तो मैं डायरेक्ट लिख गया अनडिफाइंड किया, ठीक है। सो आई डिड नॉट चेंज ओनली द वैल्यू ऑफ cot, मतलब मैंने यहाँ अनडिफाइंड लिखा, लेकिन ये cot 30 का जो वैल्यू मैंने उसका रेसिप्रोकल ही नहीं किया था, वो मैं भूल गया था। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और उसका 1/√3 इसका 0 हो जाएगा। cosec 90 का भी फिर देखा जाए तो 0 होगा, क्योंकि ठीक है, ये तो हो गया कि अगर मान लो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स आते हैं, ठीक है, सारे अगर स्टैंडर्ड एंगल्स आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस में, तो ठीक है, इस तरह से तो तुम लोग कर सकते हो। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट द थिंग व्हिच आई एक्सप्लेन यू न्यू, दिस इज द थिंग व्हिच यू हैड ऑलरेडी डन इन क्लास 10। बट व्हाट हैपेंस इफ द एंगल इज मोर देन 90? मोर देन 90 मींस अगर मान लो sin 135 डिग्री होता है, अगर मान लो sin 135 डिग्री, cos 350 डिग्री, sin 180 डिग्री, cos 270 डिग्री, तो फिर ये सारे एंगल्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? क्या इस तरह से टेबल से हम लोग याद रखेंगे? नॉट एट we ऑल। will get that. So today our objective is to know how to calculate the values of these functions. So for this I'll give you few steps. I'll give you algorithm. Algorithm means I'll give you steps using which you can find out the values of trigonometric functions if the angle is more than 90 degree. Okay, so let us see कि कैसे हम लोग इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। So for this everyone write down the steps. मैं भी जो steps लिखवा रहा हूँ बस तुम लोग कॉपी करते जाओ, मेरा काम है समझाना, बस तुम कॉपी करो जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। So suppose if you have got trigonometric functions whose angle is more than 90 degree, then what are the steps? Step number 1, express theta equals to n into 90 degree plus minus phi, where n belongs to a natural number and phi is an angle which is less than 90 degree. I'm again saying that it's your only the thing which you have to do right now is copy it up and nothing else. इस पे दिमाग मत लगाओ, ये मेरा काम है समझाना, बस कॉपी करोगे पहले। क्वाड्रेंट कॉपी। नंबर 2, check the quadrant of theta if the quadrant is the home quadrant
of the given trigonometric function. तो वहाँ थीटा है क्या? Then multiply positive sign, hence negative. कहाँ पे बोला तुमने थीटा आएगा? सर वहाँ पे वो क्या लिखा है? लेस देन 90 डिग्री के पहले। फाई का सिंबल। सर वो होम कोऑर्डिनेट है, इन दी होम कोऑर्डिनेट। हाँ, होम कोऑर्डिनेट जैसा मैंने लिखा बस लिख देना, होम कोऑर्डिनेट। check n if n is odd, then change the given trigonometric functions to its equivalent Sir, what have you written after given? Home coordinate of the given. given trigonometric function TRIG, इसे मैं लिख दूं TRIG मतलब शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है? Okay. ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं शॉर्ट में TRIG लिख रहा हूं, ठीक, पूरा नहीं लिख रहा। If n is even, then keep the given trigonometric function same. Everyone just copy it out. See everyone, after you all have copied the steps, now my next step is to explain you how to determine the quadrant. अब मैं बताऊंगा कि क्वाड्रेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ध्यान से नोट करें। सबसे पहले चीज मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं, ठीक है? See, you all know that this is first quadrant, this is second, this is third, and this is fourth. This I cannot change. According to my convenience, I cannot change, and I cannot say that no, I'll consider this as first, this is second, this is third, and this is fourth. I cannot do this. Because you know that angle is measured positive in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में positive measure किया। दूसरा बात, तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंटी-क्लॉकवाइज तो घूमेंगे लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है? हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा यहीं से। ठीक है? हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, ये लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। And we have to move anti-clockwise direction. Now my question is, अगर मान लो मैंने ये पेन को जो होल्ड किया है, इसका टिप को मैंने रखा इस लाइन पे, तो एक बात मुझे बताओ, ये कोई क्वाड्रेंट है? चलिए, क्या ये कोई क्वाड्रेंट है? नहीं है ये क्वाड्रेंट। ये तो मैंने एक्सिस के ऊपर रखा है ना, एक लाइन पे रखा है, तो ये थोड़ी ना कोई क्वाड्रेंट हो सकता है। क्वाड्रेंट तो इसके बाद, ये लाइन के बाद वाला ये ग्रैंड क्वाड्रेंट है। तो एक बात बताओ, टेल मी एवरीवन, अगर मैं ये बोलता हूं तुम लोगों को 1 into 90, कोई बता सकता है 1 into 90 का मतलब क्या होता है? 1 into 90 का मतलब हिंदी में एक बार 90, एक बार 90, एक बार 90 क्या हुआ बताओ तो? अगर मान लो पेन का टिप यहाँ पे है तुम्हारा, अगर पेन का टिप यहाँ पे है, तो एक बार 90 मतलब पेन का टिप यहाँ पे घूम के यहाँ पे पहुंच जाएगा। Did you get? Is this clear everyone? एक बार 90 मतलब हमको पता है कि हर एक क्वाड्रेंट में कितना 90, एक 90 है, इस क्वाड्रेंट में भी 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, हर जगह। ठीक है? तो अगर मान लो एक बार 90 बोल रहे हैं, मतलब कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर मैं ये बोलूं 2 बार 90, 2 बार 90, तो बताओ तो कहां पे आएगा, किस लाइन पे? यहां से हम स्टार्ट करें, देखो स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए यही है, स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए यही है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट का बात करें तो हर एक के लिए यही लाइन होगा, इसी पे लाइन करेगा। एक बार 90 मतलब यहां पे पहुंच गया, इस लाइन पे। तो 2 बार 90 का मतलब क्या होगा, बता सकते हो तुम लोग? सर ये एकदम ऑपोजिट वाले को 180 एक्सिस पे आ जाएगा। ये वाले लाइन,
ये 1 2 3 समझ में आया? तो 2 बार 90, 2 बार 90 का मतलब यहाँ पे आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टाइम्स 90? 3 टाइम्स मतलब 3 बार, 3 गुना 90, 3 बार 90 मतलब कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट को भी करे। Third quadrant. ये वाला था, ये वाला इस लाइन, इस बॉर्डर लाइन पे। ये बॉर्डर लाइन क्या है बताओ तो? थर्ड और फोर्थ का बीच। ये बॉर्डर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड का और फोर्थ का। समझ में आया तो बात? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये बॉर्डर लाइन है थर्ड और फोर्थ का? समझ में? अब देखो नेक्स्ट, 4 बार 90 का मतलब कहाँ पे बताओ तो? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं 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 सर वही वाला लाइन 366. बॉर्डर लाइन स्टार्ट ऑफ, किया होता नहीं। हाँ बॉर्डर लाइन ऑफ फोर्थ एंड फर्स्ट, मतलब यहाँ पे जहां स्टार्ट किया, वेरी गुड। ये अगर टर्म यूज करें, जहां स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गया वापस से, दिस इज द परफेक्ट वन। तो 4 गुना 90 का मतलब हम लोग ने जहां से स्टार्ट किया था, अब तुम बोलोगे सर आपने तो स्टार्ट यहां से किया, यहां पे रख दिया। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम जिस लाइन पे शुरू किए थे, जिस लाइन पे मैंने शुरू किया था, उसी लाइन पे मैं आके कल रुक गया मैं वापस से। 4 गुना 90 का मतलब, अरे एक बात बताओ, 4 टाइम्स 90 का मैं बोल सकता हूं मतलब 1 कंप्लीट राउंड। 4 टाइम्स 90 का मतलब मैं बोल सकता हूं 1 कंप्लीट राउंड। Yes, sir. 1 कंप्लीट राउंड, 1 कंप्लीट राउंड मींस 4 बार 90। ठीक है, अब एक बात बताओ, 8 into 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड हो बताओ तुम? Sir, 2 complete round. सर 2 सिंपल सा चीज, 2 complete circles. हाँ, I mean 2 complete round, correct, 2 complete circles, 2 complete round, anything। तो क्योंकि 2 complete circle means पूरा कंप्लीट हो गया, तो पूरा क्वाड्रेंट को, पूरा 4 क्वाड्रेंट को 2 बार घूम चुके। ठीक है, अब एक बात बताओ, 8 बार 90 का मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों 2 कंप्लीट राउंड, इस तरह से समझो तुम, इस तरह से समझो। 4 बार 90 का मतलब 1 कंप्लीट राउंड, 8 बार 90 का मतलब क्या होता है? 2 into, मतलब 2 बार राउंड लगा दो। तो 2 बार राउंड लगाने का मतलब क्या है? राउंड लगाने का मतलब है राउंड, राउंड मतलब क्या होता है? जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म। तो 2 कंप्लीट राउंड मतलब क्या? वापस से यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ सब कोई का? एक बार और 2 बार। क्लियर एवरीवन? अब एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 into 90? Sir, 5 complete rounds. 5 कंप्लीट राउंड मतलब 5 कंप्लीट राउंड मतलब वहां से स्टार्ट किया, एक राउंड, 2 राउंड, मतलब वापस से वहीं पे आ जाएगा। छोड़ो मुझे, वापस से वहीं पे आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं यहाँ पे +30 कर देता हूँ, सुनना ग्राफ को ध्यान से, 20 कंप्लीट राउंड मतलब 20 बार 90 का मतलब हो गया, सॉरी 20 कंप्लीट राउंड मैंने बोला गलती से, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5 टाइम्स 5 कंप्लीट राउंड, क्योंकि 4 into 90 का मतलब होता है 1 कंप्लीट राउंड। तो अगर हम 20 को ऐसे देखें 5 into 4, इसका मतलब क्या हो गया? ये 5 कंप्लीट राउंड। तो 5 कंप्लीट राउंड मतलब यहां से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे आके खत्म हो गया। देखो प्लीज मेक श्योर दैट डोंट, बहुत लोग ऐसे सोच रहे होगा कि सर एक बार घूमे और बोल रहे 5 कंप्लीट राउंड। ठीक है, मैं कर देता हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अभी क्लियर? ठीक है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ ये करके कि देखो 5 बार भी राउंड लगाने पर तो वही आया ना। ये लॉजिक का मतलब ये बोलता है कि 5 कंप्लीट राउंड मतलब 5 बार घूमो या 20 बार घूमो, वहीं पे आके रुकोगे तुम। अब ये लाइन के बाद देखो, ये लाइन के बाद तुमको जाना कहाँ पे? तुम वहां पे तो रुक गया, उसके बाद प्लस है। प्लस का मतलब मैं आगे बढ़ूंगा या मैं पीछे जाऊंगा बताओ? Shall I move? आगे। तो आगे का मतलब ये लाइन के आगे कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। First. करेक्ट, मतलब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लीज नोट डाउन 20 टाइम्स 90 + 30। सर अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाके रुक रहा है? ये कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुक रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके रुक रहा है। समझ में आया तो बात? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि 0 और 90 का जो रेंज होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, वो तो तुमको अगर हम एक कंप्लीट राउंड का बात करें तो वो हो गया। अगर हम इस पूरे सिस्टम पे घूमते रहे, पूरे सिस्टम पे घूमते रहे, तो हम देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में आके रुक रहे हैं। इस क्वाड्रेंट में आके रुक रहे हैं। 20 बार 90 + 30, अगर हम 20 बार चक्कर लगा के और +30 कर दे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुक रहे हैं? हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके रुक रहे हैं। समझ में आया बात? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब बोलो। सर अगर 20 into 90 प्लस अगर 100 डिग्री होता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट होता ना। एक सेकंड सब कुछ बता रहा हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट ना। अभी मैं जो भी चीज कर रहा हूँ इस पे याद रखना कि हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी फॉर्म में। याद रखना जहां पे n होना चाहिए नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। हम n को ऐसे नहीं बोल सकते कि n नेगेटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, मतलब 1 से स्टार्ट होगा अप टू इंफिनिटी एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स।
फाई क्या होगा? फाई विल बी acute angle. Note down. क्या? Acute angle, not obtuse angle or any angle greater than 90 degree. Please make sure that ये फाई क्या है? acute angle है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता है 100 डिग्री का, 100 डिग्री का या 120 का या 180 का कोई सवाल अराइज नहीं होता है। ठीक है, तो बस मैं इस पहले में देखो, मैं इसीलिए वापस से एक बात बोल रहा हूँ, स्कूल में क्या कर रहा है उसको एक बार साइड लगा दो, क्योंकि मैं तो एक बार अभी बेसिक लेवल से जा रहा हूँ ना, और तुम लोग बेसिक लेवल से नहीं करके वो हाई लेवल का क्वेश्चन पूछोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर मेरा जो तरीका है, मतलब जो मैं शॉर्टकट्स बताना चाहता हूँ, मेरा जो तरीका से वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट यस दैट इज 100% करेक्ट। मैं मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी स्कूल की चीजों को भूल जाओ। हाँ बोलो सर, अगर वहां पर अक्यूट एंगल में 90 दिया हुआ है तो तब अक्यूट भी एंगल 90 होता ही नहीं है। नहीं, अक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 होता है। 90 का मतलब तो राइट एंगल होता है। ठीक है सर, वो अप टू 90 डिग्री होते हैं ना, एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री। नहीं, अक्यूट अप टू 90 नहीं होता है। 90 डिग्री को अक्यूट नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। अक्यूट मतलब लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90, लेस देन 180। समझ में आया? कैन आई गेट रिस्पांस? ओके, ठीक। तो समझ में आई ये बात? अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि 24 into 90 minus 10 डिग्री, ठीक है, 24 into 90 minus 10 डिग्री, तो एक बात बताओ मुझे, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। एक सेकंड, तो क्वेश्चन की सर फोर्थ क्वाड्रेंट। I heard. Okay, just a minute. अगर तुम लोग एक साथ बहुत लोग नहीं रिप्लाई कर सकते तो चैट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है, ध्यान देना पर सबसे पहला चीज 24/90। तो 24/90 का मतलब कितना होगा? 24/90 का मतलब होगा 6 कंप्लीट राउंड। देखो 6 कंप्लीट राउंड। ठीक है, तो 6 कंप्लीट राउंड में मुझे टेंशन की बात नहीं है, यहीं पे आके रुक जाएगा वापस। इसके बाद माइनस है तो पीछे आ जाएंगे, और प्लस है तो लाइन के बाद आ जाएंगे। तो माइनस से मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब मैं एक बार लेता हूं, अगर वो जैसे अभी तक जितना भी मैंने एग्जांपल्स लिए वहां पे क्या था कि वो मल्टीपल ऑफ 4 था, 6 4 जा, 5 4 जा, 4 4 जा, 3 4 जा। अब हम लेते हैं एग्जांपल्स जो मल्टीपल नहीं होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 26 into 90 प्लस 40 डिग्री, तो 26/90, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि 26 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है? 24 है ना 24। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 कंप्लीट राउंड में घूम जाएंगे, मतलब यहाँ पे सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। एक सेकंड में पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूं, मैं डायरेक्ट अभी आंसर नहीं दूंगा, फिर मैं तुम लोगों को शॉर्टकट भी बताऊंगा, तुम लोग देखना, देख के तुम लोग क्वाड्रेंट बता सकते हैं। आई टेल यू, बट एक बार मैं पूरा प्रोसेस बता दूं। नाउ लिसन हियर, 26/90 का मतलब हो गया, पहले हम देखेंगे कि 26 के क्लोजेस्ट में कौन सा ऐसा नंबर है क्लोज में कि जो 24 का मल्टीपल है, जो 4 का मल्टीपल है, दैट इज 24। 26 के बड़ा नहीं, 26 से छोटा, जो कि 24 है। तो 24 का मतलब क्या हो गया? 24 का मतलब हो गया 6 कंप्लीट राउंड। तुम 6 बार लगा के बेकार में टाइम वेस्ट, क्या बेकार में हम उतना 6 बार घूमेंगे? हमको पता है कि 6 कंप्लीट राउंड मतलब यहाँ पे है, तो 6 कंप्लीट राउंड मतलब हो गया 24 बार। तो 24 हो गया यहाँ पे, 25 हो गया यहाँ पे, 26 हो गया यहाँ पे। इस लाइन के बाद प्लस जाना है या माइनस जाना है? प्लस जाना मतलब आगे जाना है या पीछे जाना है? आगे। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस, मे आई गेट रिस्पांस? इज दिस क्लियर फ्रॉम एवरीवन? नाउ अभी मैंने क्या किया तुम लोगों को कि सारे एंगल्स को मैंने n into 90 मतलब डायरेक्ट n into 90 प्लस समथिंग, या मतलब प्लस समथिंग मतलब वो समथिंग जो है वो अक्यूट होना चाहिए, या माइनस समथिंग करके मैंने बता दिया। लेकिन मान लो ऐसा भी तो सिचुएशन आएगा जहां पे इस तरह का, जैसे कि मान लो 4000 से, मान लो सपोज यू हैव गॉट 4960 डिग्री है। देखो अभी तक मैंने क्या किया पता है तुमको? डायरेक्ट बोल दिया कि देखो 24/90 into 30 कितना होता है, 25/90 into 30 कितना होता है, ऐसे करके मैंने बताया। अब इतना बड़ा एंगल है ना, देखो एक बार में दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अगर मैं क्वाड्रेंट का डिटरमाइन करूं कि किस क्वाड्रेंट में है, तो मुझे एक्चुअली क्वाड्रेंट में एक्सप्रेस करने के लिए मैं देखा कि सबसे भी बेटर तरीका, अभी तक, अभी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तक का सबसे बेटर तरीका क्या था कि इस एंगल को n into 90 मतलब मल्टीपल ऑफ n into 90 प्लस माइनस 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो।
अभी तक जो भी कुछ हम लोग ने एग्जांपल्स देखा ना, अभी तक कुछ थोड़ा बहुत जो भी एग्जांपल्स देखा, तो वहां उस एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी एंगल का क्वाड्रेंट चेक करना है कि चलो 0 to 360, 360 से आगे या 720 से आगे जो भी, तो क्वाड्रेंट अगर चेक करना है तो सबसे बेटर तरीका क्या होता है अभी तक का, कि उसको n into 90 प्लस माइनस फाइव के फॉर्म में एक्सप्रेस कर, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, फाइव क्या है, अक्यूट एंगल। अभी तक तो मैंने सब काम आसान करके दे दिया, बता ही दिया कि ऐसा है तो क्या होगा, क्वाड्रेंट बताओ। लेकिन अभी क्या कर दिया मैंने तुम लोग को, बोला कि 4960 किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे अब मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, तो करने का मैं तरीका बताता हूँ। लिसन, क्या करना है देखो तुम लोग, 4960 डिग्री को, क्योंकि दिमाग इतना काम नहीं कर रहा एक बार में कि कितना इंटू 90 प्लस कितना करने से इतना आ जाएगा, समझ में मेरे बात, n इंटू 90 मतलब n क्या होगा, तो समझ में नहीं आ रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको 90 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स पहले, इसके बाद हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो 70 डिग्री रिमाइंडर आ गया, So it will be 46. So 496 minus 450. एक सेकंड ना, 90 into 51 ना, राइट, 95 जब 450, ठीक है। सर उधर 4 होगा। तो 4 वो गलती से मैं, सॉरी, अब ये हो गया तुम्हारा 5 9 जब 45, सॉरी, ठीक है, 10 डिग्री, वो गलती से 8 समझ गया। अब ध्यान देना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4960 डिग्री को 50, यू नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पता है तुम लोगों को, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, 5 है, 5 को 2 से डिवाइड किया, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ठीक वैसे ही क्या मैं 4960 डिग्री को 90 into 55 प्लस 10 डिग्री लिख सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा n को पहले रखूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसको ऐसे ना लिख करके मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में लिखूं, अपने आप को मैं करेक्ट करूंगी, नहीं चलो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर अच्छा लगेगा। अब एक बात बताओ, 55 into 90 प्लस 10 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा, बताओ फर्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट होगा। देखो सबसे पहला चीज 55 के क्लोजेस्ट में 4 का मल्टीपल कौन सा है, लेस देन 52 होता है ना, 52 होता है, 52 का मतलब यही पे आ जाएगा, उसके 55 है यहाँ पे, 52 यहाँ तक है, 55 52 53 54 55, समझ में है। और उसके बाद प्लस है, प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, समझ में। तो मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल से तुम लोग को ये बताना सिखाया, ये मैंने सिखाया कि देखो एंगल्स अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, अगर एंगल्स ऑलरेडी इस फॉर्म में तुम लोग को एक्सप्रेस करके नहीं दिया रहेगा, तो तुम लोग क्या करना है, डिवाइड करके और एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब बताओ ये डन, डाउट क्या था, तो वो 55 वाला नहीं समझ में आया जो आपने बोला, मतलब ये वाला चीज क्वाड्रेंट वाला चीज, हाँ सर, अब सर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, 55 into 90 मतलब रूल यही है कि पहले कितना कंप्लीट राउंड लगा वो चाहता है, तो कितना कंप्लीट राउंड देखा जाए तो ये 55 तो 4 का मल्टीपल नहीं है ना, क्या 55 4 का मल्टीपल है, नहीं, लेकिन 55 से लेस कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, बताओ तो एक बार, देवांश बताओ। यस 52 है, सीधा सा बात दिख रहा है 52, हाँ सर दिख रहा है ना 52 है। तो एक बात बताओ 52 टाइम्स 90 का मतलब कितना कंप्लीट राउंड होगा, बताओ तो, 13 बाय 13 कंप्लीट राउंड, देख लो 13 मतलब कहने का मतलब है वापस से यहाँ पे आ जाएगा, तो 52 into 90 मतलब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 55 है, तो 55 मतलब यहाँ पे 52, तो यहाँ पे हो गया 53 54 और यहाँ पे आ गया 55, ठीक है। अब उसके बाद 55 into 90 के बाद प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बताओ तो, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आया तो बात, तो ये तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? हाँ बोलो। अच्छा नहीं ठीक है सर, जैसे फॉर्मूला है कि n into 90 प्लस माइनस, तो मतलब आपको मतलब वैसे हम लोग को प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं 55 into 90 है, तो तरीका है
60 मतलब क्या होगा 56 into 90 हम बता रहे हैं 6 into 90 कितना होगा 540 ठीक है तो 460 से 540 कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है कितना सर 80 80 120 एक सेकंड जस्ट कैसे 40 plus 40 80 होता है 80 120 80 अब से ध्यान देना एक बार इसका मतलब ये समय क्या करना होगा तो हम लोगों ने क्या किया डिवीजन का रूल को वायलेट क्या किया एक्चुअली करना चाहिए था 5 9 या 45 रूल तो ये होता है ना तो मैंने देखा कि 690 या 540 तो 540 कितना ज्यादा है 460 से 540 कितना ज्यादा है 80 ज्यादा है मतलब हम ऐसा कर सकते हैं 56 into 90 minus 80 चेक कर लो अपनी कैलकुलेटर में ठीक है 56 into 90 जो भी होगा उसमें -80 करोगे तो 4960 हो जाएगा तुमने पूछा था ना कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे कैसे पता चलेगा तुम कुछ भी करो जो तुम्हारे दिमाग में आता है फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं इसके लिए ठीक है सर आंसर तो सेम ही आएगा ना सेम ही आएगा सेम ही चीज आएगा 56/90 का मतलब हो गया 14 कंप्लीट राउंड यहाँ पे इसका -80 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट ही बदलेगा ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस करने से क्वाड्रेंट बदल जाएगा बस ये ध्यान रखना कि वो सेम मतलब राइट होना चाहिए ठीक है ओवरऑल इसको सॉल्व करके इतना ही वैल्यू आना चाहिए अब जैसे मान लो सपोज ये 315 डिग्री है तो 315 को हम लोग 3 into 90 कितना हुआ 3 into 90 270 हुआ ना 3 into 90 270 270 में क्या ऐड करने से 315 डिग्री आएगा बताओ 45 तो प्लस 45 या हम ऐसे कर सकते हैं 4 into 90 कितना हुआ 4 into 90 360 360 तो 360 में ऐड करने से तो नहीं आएगा ये 360 में ऐड करेंगे तो और बड़ा वैल्यू हो जाएगा तो 360 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या सब्ट्रैक्ट करेगा तो 45 तो सेम आएगा दोनों से आंसर देखो 3/90 एक बार दो बार तीन बार प्लस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट 4/90 मतलब यहाँ पे -45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट तो दोनों से एक ही आएगा सर 55 into 90 वाला हम नहीं समझा क्या चीज 55 into 90 55 into 90 नहीं समझा तो कि कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला चीज। हाँ सर 55 वाला 56 समझिए एक बात बताओ 55 56 तुम इसीलिए समझ गए ना देखो एक बार ध्यान दो हाँ सर 56 समझ गया वही मैं बोल रहा हूँ 56 तुम इसीलिए समझ गया बिकॉज 56 का मतलब हो गया डायरेक्ट 4 का मल्टीपल हो गया हुआ कि नहीं 4 का मल्टीपल है ये 56 4 का मल्टीपल है या नहीं यस हाँ सर 56 4 Yes, का sir. मल्टीपल इसीलिए तुम डायरेक्ट समझ गए लेकिन 55 4 का मल्टीपल है नहीं तो हम क्या करेंगे देखो 55 से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है बताओ तो एक बार मुझे 52 52 तो 52 का मतलब हो गया यहाँ पे वापस से यहीं पे आएगा 13 बार हो या जो भी बार हो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया मतलब यहीं पे आएगा जितना बार भी घूमो ठीक है क्लियर है हाँ सर अब देखो अभी 55 है तो 52 का मतलब यहाँ पे हुआ 53 का मतलब यहाँ पे हुआ 54 का मतलब यहाँ पे हुआ तो 55 का मतलब क्या हो गया इस लाइन पे आएगा आया ना इस लाइन समझ गया समझ में अब देखो अब हाँ, तुम लोगों को शॉर्टकट अब हम तुम लोग को शॉर्टकट बताएंगे जो एक लाइन में आंसर देगा इतना जो है ना बार बार इतना 52 इंटू जैसे हम बता रहे हैं कि 52 55 में 52 बार घूमो 53 बार घूमो इतना नहीं करना है हम तुम लोग को शॉर्टकट बताते हैं ध्यान रखना इसको सबको ध्यान से नोट करना सर हाँ सर मतलब अगर हम लोग प्लस में रखते हैं जैसे 55 वाला केस में एक में 10 डिग्री हो जाएगा एक में 80 डिग्री तो सर आंसर एक तरह डिफरेंस नहीं हो जाएगा सब एक है एक बार बताओ मुझे sin 30 का वैल्यू और cos 60 का वैल्यू सेम होता है हाँ सर तो वैसे ही करके हम आगे देखेंगे वो चीज ऐसा कुछ होगा हम आगे बताएंगे डोंट वरी ठीक है वो सब का चिंता नहीं करना है वो हम बता देंगे क्यों सेम आएगा अभी तो बस हम क्वाड्रेंट निकालना सिखा रहे हैं ठीक है अब देखो ध्यान से क्वाड्रेंट का एकदम इजी तरीका निकालने का ये तो हो गया प्रोसेस अब एकदम इजी तरीका दिखाएंगे देखो एक बार ध्यान से एक बात बताओ 1 into 90 plus 20 listen here 2 into 90 plus 20 3 into 90 plus 20 एक बात बताओ 1 into 90 plus 20 कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ फटाफट बताओ सेकंड सेकंड एक बार 90 यहाँ पे आया इसके बाद प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी भी नहीं हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट इसका मतलब थर्ड थर्ड कैसे 2 बार 90
प्लस थीटा मतलब प्लस 20 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब फोर्थ। 3/90 प्लस 20 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ध्यान से, सेकंड है ना, देखो ध्यान दो, ये क्या है 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये क्या है 3 है, ये 3 है तो ये क्या है 4 है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। ध्यान देना, पहले बोलना मत कुछ, ध्यान देना। 16 into 90 plus 20 कौन सा क्वाड्रेंट होगा तुमको बता दो। 16 क्या करना, देखो बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले बात सुनो, एक बार ध्यान से सुनो पहले। तुम लोगों को पता है सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि वो तरीका से 4 4 जा 16, उसके बाद प्लस 20 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड नहीं होगा। कैसे होगा सेकंड? 16 into 90 का मतलब 4 बार कंप्लीट राउंड, 4 कंप्लीट राउंड मतलब तो यही पे आएगा ना। इसके बाद प्लस है, प्लस 20 मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, सेकंड कैसे हुआ? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या करना तुम लोग, 16 को जो n होगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ तुम? 4। अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, मैं पूछ रहा हूं, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। जो रिमाइंडर आता है ना उसमें 1 ऐड कर दो। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो अब देखो 15 into 90 plus 30, सेकंड क्वाड्रेंट 15 को 4 से डिवाइड कर दो। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। 3 में 1 ऐड कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट। चेक करना कर सकते हैं, चेक करना। 15 बार मतलब 12 13 14 15, उसके बाद प्लस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। चेक करो, काम करो, ठीक है सब। मतलब कब काम करे, ये वाला तरीका कब काम करेगा? दो चीजों, ध्यान देना। पहला पॉइंट, ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, ये माइनस के लिए काम नहीं करेगा। जो मैं शॉर्टकट बताया मैंने, ये माइनस के लिए काम नहीं करेगा। प्लीज स्ट्रिक्टली और लिसन हियर, ये माइनस के लिए काम नहीं करेगा, प्लस होगा तभी काम करेगा। दूसरा पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए? 4 या फिर 4 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 या फिर 4 से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर 4 से कम होगा तब तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2। अब एक बात बताओ, जैसे 55 वाला का झमेला हो रहा था ना, 55 into 90 प्लस क्या था ना, जो भी था मानो 35 डिग्री था। अब एक बात बताओ, 55 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ तो क्या होता है? 3 3 होता है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आया? ठीक लग रहा है अभी? क्या Zero में से बोला कोई- आपने? क्या बोला अभी? सही है वाला जो 55 को क्या कर ले? अभी सब में वही हम लोग कर रहे हैं। 16 को जैसे 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 4 16 क्या? को 4 से 0। 0। मैं बोल रहा हूँ 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या? क्वाड्रेंट डिटरमाइन करने का। तो शॉर्टकट क्या है? लिसन हियर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो शॉर्टकट में दो चीज ध्यान देना है। पहला पॉइंट कि इसमें ये हमेशा प्लस होना चाहिए। ये शॉर्टकट काम कैसे करेगा? अगर ये हमेशा प्लस होगा तो देखो प्लस प्लस प्लस, अगर ये माइनस होगा तो ये वाला शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शॉर्टकट कैसे काम करता है? जो भी n होगा n को 4 से डिवाइड कर दो। अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 0 में 1 ऐड करता हूं वो तुम्हारा क्वाड्रेंट बचेगा। रिमाइंडर में 1 ऐड कर दो वो तुम्हारा क्वाड्रेंट बचेगा। जैसे 15 into 90 plus 30, इतना बार वो घूम के नहीं चक्कर लगा, वो तरीका मत फॉलो करो, शॉर्टकट लगाओ। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 + 1 4। वैसे ही 55 into 90 plus 35 है, तो 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 + 1 4 क्वाड्रेंट। तो ये हम लोग इस तरीके से बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बैलेंस निकाल सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये तो हो गया क्वाड्रेंट वाला पार्ट। इस तरह से क्वाड्रेंट का डिटरमाइन करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सर माइनस में निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं? माइनस वाला कोई शॉर्टकट नहीं है। माइनस वाला में तुमको वही लंबा तरीके से जाना पड़ेगा। एक्चुअली में सर, Yes, sir. सर आप जो सर 4960 दिए थे सर, फिर उसको भी वैसे करके निकालना पड़ेगा? That is 4960। हाँ सर।
तुमको पहले तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा ना, इस फॉर्म में तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। अच्छा फिर n को डिवाइड कर देगा। फिर n को वही तो मैंने 55 वाला लिखा है, ये तो 55 वाला था इसी तरह से। नो एवरीवन लिसन, सपोज अगर मान लो लेट्स से द फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स से sin 350 डिग्री, ध्यान रखो, ठीक है, लेट्स से sin 350 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालना, ध्यान देना। Everyone note down the steps which I have given. पहले कॉपी मत करो और स्टेप्स को ध्यान से नोट करो। What is the first step? फर्स्ट स्टेप देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल 90 से बड़ा होता है तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इसको पहले एक्सप्रेस करो। स्टेप 1 देखो, एक्सप्रेस थीटा इन द फॉर्म n into 90 प्लस माइनस 5। सो एक बात बताओ, 350 डिग्री को अगर मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो क्या होगा बताओ, तो कोई बता सकते हैं? सर 90 डिवाइडेड 90 into 3 plus 45. 3 into 90 plus 45. 3 into 90 हो गया 270। 270 में क्या ऐड करने से 359 प्लस 45। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 4 into 90 minus 45. यस, 4 into 90 हो गया 360। 360 में क्या सब्ट्रैक्ट करने से 315 आएगा माइनस 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, 2 into 90 नहीं कर सकते, याद रखना, बिकॉज ये जो 5 है ये क्या होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो बहुत लोग ऐसा सोच रहा होगा कि 2 into 90 क्यों नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते बिकॉज 2 into 90 कितना हो गया 180। 180 में जो ऐड करेंगे हम लोग वो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा। किसको एक्सीड कर जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन याद रखना जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग वो क्या होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे पास यही दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो ये या तो ये। अब यहाँ पर डिवीजन वाला रूल क्या फॉलो करना है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। छोटा छोटा नंबर्स में तो हम लोग एक बार में देख के बता सकते हैं, नंबर बहुत बड़ा होगा तो हम लोग को डिवाइड करने वाला टेक्निक फॉलो करेंगे। ये डिवाइड करने वाला टेक्निक तब फॉलो करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो पता ही चल रहा है कितना है। ठीक है, तो यहाँ क्या डिवाइड करेंगे, अब देखो बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे वो शॉर्टकट काम कर जाएगा, क्यों काम कर जाएगा बताओ, तो रीजन क्या है, यहाँ शॉर्टकट क्यों वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ सर क्योंकि प्लस भी है, Positive sign. प्लस है, यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 है, शॉर्टकट में क्या होता है कि जो ना अगर n है, n लिसन हियर, अगर n 4 या 4 से ज्यादा है, 4 या 4 से ज्यादा है तो फिर डिवाइड करना। अगर 4 से कम है तो डायरेक्ट ऐड कर देना, जो भी इसमें वैल्यू, जो भी n है उसमें 1 ऐड कर देना, वो तुम्हारा क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर वो n 4 या 4 से ज्यादा होता है तो फिर उस n को 4 से डिवाइड करना है। Did you get my point? If this n is 4 or more than 4, then you have to divide and add to the remainder 1. रिमाइंडर में 1 ऐड करना है, वो क्वाड्रेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू लेस देन 4 ऑलरेडी है तो डायरेक्ट हम क्वाड्रेंट चेक कर सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, तो 3 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड पॉइंट रीड करना एक बार सबको। पहला पॉइंट है एक्सप्रेस, सेकंड पॉइंट क्या है, रीड करना। चेक द क्वाड्रेंट, प्लीज लिसन हियर एवरीवन, चेक द क्वाड्रेंट if the quadrant is the home quadrant, listen here, if the quadrant is the home quadrant of the given trigonometric function, मतलब अगर दिया हुआ trigonometric function का वो home quadrant है, home quadrant समझते हो तो पहला quadrant सबका quadrant है, second quadrant sin और cosec का quadrant है, ये home quadrant है, third tan और cot का quadrant है और fourth cos और sec का quadrant है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, fourth quadrant साइन का होम क्वाड्रेंट है या नहीं बताओ? नहीं सर, नहीं नहीं है। अगर वो उसका होम क्वाड्रेंट नहीं है मतलब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करो, अगर वो उसका होम क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो। चेक करो स्टेप नंबर 2, यही मैंने लिखवाया था। चेक द क्वाड्रेंट, इफ द क्वाड्रेंट इज द होम क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन फंक्शन देन मल्टीप्लाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो ये उसका क्वाड्रेंट नहीं है, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई किया। सर होम क्वाड्रेंट क्या होता है? वो मतलब उसका वो क्वाड्रेंट है। जैसे सिंपल, ये कोई ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है, मैंने तुम लोग को समझाने के लिए बताया। होम मतलब उसका वो घर, जैसे फर्स्ट में सबका घर है, सबका घर मतलब इसीलिए सब पॉजिटिव है वहां पे। सेकंड किसका घर है बताओ तो? साइन कॉस, साइन और कॉसेक। थर्ड किसका क्वाड्रेंट है? टैन कॉट, मतलब वो उसका होम क्वाड्रेंट है। और फोर्थ किसका क्वाड्रेंट है?
cos और sec Sir- वो उसका होम कोऑर्डिनेट है, यही है बस इसका मतलब। सपोज सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता तो सर ये इसका होम क्वाड्रेंट ही होता है। हाँ तब वो पॉजिटिव साइन देते हैं। नेक्स्ट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव दे दिया। अब देखो नेक्स्ट, रीड द थर्ड स्टेप, प्लीज रीड द थर्ड स्टेप एवरीवन। चेक n, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक n। अगर n ऑड होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ n is odd then change the given trigonometric function to its equivalent complementary. Now what is the meaning of equivalent complementary? Can you tell me what is the complementary of sine function? Cos. Cos. What is the complementary of tan function? Cot. Cot. What is the complementary of sec function? Cosec. मतलब समझ में है ना, sin 30 का वैल्यू cos 60 के वैल्यू के बराबर होगा, tan 20 का वैल्यू cot 70 के बराबर होगा। इसको मतलब कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो अब देखो 3 ऑड है तो चेंज मतलब साइन में चेंज टू व्हाट, cos, ठीक है। अगर ऑड है तो चेंज कर दो, देखो लिखा हुआ है इफ n is odd then change the given trigonometric function to its equivalent complementary। और अगर n इवन है तो सेम रखो, सेम मतलब साइन है तो साइन रखो, cos है तो cos रखो, tan है तो tan रखो। ऑड है तो चेंज कर दो, चेंज किस में होगा, कंप्लीमेंट्री में होगा। साइन का कंप्लीमेंट्री क्या है, cos है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 40 डिग्री और 50 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो sin 40 का वैल्यू cos 50 का वैल्यू बराबर होगा, cos 40 का वैल्यू sin 50 का वैल्यू बराबर होगा। सिमिलरली फॉर tan and cot, sec and cosec, मैं बार-बार ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो cos लेंगे क्योंकि ऑड है, लास्ट में जो phi है, phi क्या है 45 डिग्री, बस इसको लिख दो। ये डिटरमाइन करता है ये एंगल का कौन सा एंगल यहाँ पे आएगा, जो phi है phi लिख देना बस। तो phi क्या है 45 डिग्री, हम लोग को पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ phi को यहाँ लिख देना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री, टेल मी। 1/√2 -1/√2। ठीक है। अब देखो इससे भी वही आंसर आएगा, चेक कर लो, 4/90, उसके बाद माइनस है या प्लस, माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट मींस गिवन फंक्शन, ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होता है। अब देखो ये अब लास्ट पार्ट देखो, ये n ऑड है या इवन है, इवन। इवन है, तो इवन है तो सेम रखेंगे या चेंज करेंगे, सेम। सेम। सेम मतलब साइन है तो साइन रख देंगे। और लास्ट में 45 डिग्री, ये प्लस माइनस से मतलब नहीं है, 45 डिग्री लिख देंगे। व्हाट इज आंसर, तो दोनों का आंसर सर सेम आया। ये वाला समझ में नहीं आया साइन तो पॉजिटिव था ना, आपने नेगेटिव क्यों कर दिया? क्या चीज, क्या पॉजिटिव, सर साइन पॉजिटिव है, आपने इसमें नेगेटिव लिखा है -sin45। एक सेकंड पहले तुम्हारा डाउट क्लियर है, तुम क्या बोल रहे हो पहले क्लियर करो। सर साइन जैसे आपने वो लिखा है ना ब्रैकेट के बाहर, साइन पॉजिटिव है, तो ये वाला 4 × 90 -48 के बाहर साइन जो लिखा आपने। पूछ रहे सर माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 4 × 90 का मतलब क्या हुआ बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 × 90। यहाँ चार। एक कंप्लीट हो, उसके बाद प्लस है या माइनस है, उसके बाद प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है, हाँ माइनस। तो बताओ तुम ये लाइन के बाद जाना है या लाइन के पहले जाना है। पहले फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव लगाया मैंने। ओ ठीक है। उसके बाद इवन है तो साइन रहेगा, इवन है तो सेम रहेगा, सेम मतलब साइन है तो साइन रहेगा, cos है तो cos रहेगा, और लास्ट में 45 डिग्री, इसका आंसर -1 रहेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी। हाँ सर। अब एक बार सब कोई everyone find out the value of sin 135 degree, cos सर 135 degree, tan 350 degree. Please everyone find out the values of these three functions. जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, पहले सबको ये 3 का 1 2 3 ये 3 सम एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या क्या है। So everyone just pay attention here. I'll just try to clear your confusions which you have, because देखो जब तक तुम कुछ चीज अपने से सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, जब तक मैं बताते रहूंगा सब कुछ सही रहेगा, इसीलिए मैंने 3 सम दिया just to clear your concerns. So please note down very carefully. The first sum, it is sin 135 degree. All right. So we can write this as either 1 × 90
प्लस 45 बिकॉज 1 into 90 is 90. 90 डिग्री में क्या ऐड करने से 135 प्लस 1, और वी कैन राइट 2 into 90 degree minus 45, both is correct. Now एक बार 90 का मतलब हो गया यहाँ पे प्लस है, मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट हम देख के पहले बता सकते थे क्योंकि ये प्लस है, तो शॉर्टकट लगा लेते हैं हम लोग। शॉर्टकट क्या है कि जो भी n है अगर वो 4 से छोटा है तो उसमें 1 ऐड कर दो, वो तुम्हारा क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या n 4 से छोटा है? यस। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो क्या होगा? 2, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करें, क्योंकि हमको देख के भी मिल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करें। सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन, प्लीज नोट डाउन माय जो मैं बोल रहा हूं। गिवन ये है, देखो एक बार ध्यान से, गिवन फंक्शन को चेक करते हैं। तो दिया हुआ फंक्शन साइन है, तो साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये ऑड है या इवन है? ऑड है। और साइन ऑफ में बदल जाएगा। अब देखो बहुत लोग क्या कर रहे हैं बता दो, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। देखो पहले क्या कर रहे हैं, वो ये करेक्ट था, जो मैंने अभी लिखा था वो करेक्ट था। अब बहुत लोग गलत क्या कर रहे हैं, ऑड है तो साइन को कॉस में चेंज कर दिया, ये भी सही है। 1 into 90 plus 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? देखो क्या देख रहे हो, गिवन नहीं देख रहे, दिया हुआ फंक्शन को नहीं देख रहे, चेंज करके जो आ रहा है उसको देख रहे हैं। और मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि गिवन फंक्शन, गिवन मतलब तो समझते हो ना तुम लोग, दिया हुआ जो है ये क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में चेक कर रहे हैं कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, जिसके कारण तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? एक बार वापस समझा। सर नहीं हुआ सर। देखो जो मैंने स्टेप दिया, स्टेप्स के हिसाब से इसको n into 90 plus 45 में एक्सप्रेस करिए। सेकंड स्टेप है 1 into 90 plus 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये ऑड है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल 45 डिग्री है, इसके हिसाब से आंसर 1/√2 हो जाएगा। ये तो करेक्ट चीज है। गलत क्या कर रहे हो तुम? देखो व्हाट इज द रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग। तुम पहले क्या कर रहे हैं, ऑड है तो चेंज कर दे रहे हैं, उसके बाद तुम क्वाड्रेंट को देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस। सेकंड क्वाड्रेंट में तुम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि गिवन फंक्शन। एक बात बताओ मुझे, तुम जिसका भी डाउट है एक बार मुझे ऑन करके बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करके बताओ कि कॉस गिवन था या साइन गिवन था, बताओ। साइन गिवन तो साइन तुम देखेगा कि गिवन फंक्शन ना, गिवन तो ये है ना, तो ये फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो तुम क्या करेगा ना, पॉजिटिव साइन देगा ना। लेकिन तुम क्या चेक कर रहे हो पता है? तुम देख रहे हो कि 1 ऑड है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए गड़बड़ आ रहा है। ये गलत है। ये तो ऑड के कारण चेंज हो गया, लेकिन गिवन तो साइन है ना, तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो तुम यहाँ नेगेटिव कैसे दे सकते हैं? तुम कर क्या रहे गलती, ऑड है तो चेंज करके इसको देख रहे हैं कि ये कॉस फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। अभी गलती समझ में आई या नहीं है बताओ? आगे। यस यस सर। ठीक है, देखो इससे भी वही आंसर आएगा। 2 into 90 minus 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इवन है तो साइन साइन ही रह जाएगा, 45 डिग्री लेते हैं। इसका आंसर 1/2। तो पहला वाला का आंसर 1/2। सेकंड का आंसर देखो 1 into 90 plus 45। सो 1 into 90 plus 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? गिवन फंक्शन क्या है यहाँ पे? कॉस है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ऑड है तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑड है तो चेंज कर दो, चेंज मतलब कंप्लीमेंट्री में चेंज कर दो, तो कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन होता है। अब फिर यह वापस से अगर तुम्हारा आंसर 1/√2 है तो गलती क्या हो रहा है, मैं वापस से बता रहा हूं। तुम क्या कर रहे हैं, तुम जो है तुम सोच रहे हो 1 ऑड है तो साइन में हो जाएगा, वो तो सही है, इतना तक तो सही सोच रहे हैं। 1 into 90 plus 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं देख रहे तुम, गिवन नहीं देख रहे तुम, दिया हुआ फंक्शन देखना पड़ेगा ना तुमको। ये तो चेक, तुमको क्वेश्चन cos 135 दिया हुआ था ना, तो cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, तो उसमें cos नेगेटिव होता है ना, तो तुम क्या देख रहे हो? साइन। तो साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो तुम क्या कर रहे हो? वो पॉजिटिव साइन लगा के, और ये गलती कर दे रहे, ये गलत है चीज, याद रखना। तो इसीलिए मैंने वहां पे लिखा है चेक द क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन थीटा
और थीटा अगर सेकंड में लाई कर रहा है, अगर वो गिवन फंक्शन का होम क्वाड्रेंट है, गिवन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होम क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव लगाओ, नहीं तो नेगेटिव। तुम क्या कर रहे हो, चेंज करके जो है जो आ रहा है उसको चेक कर रहे हो, चेंज करके जो आ रहा है वो चेक कर रहे हो। ये उसमें क्या है, ये थोड़ी ना चेक करना है, तुमको गिवन चेक करना है। आई थिंक अब क्लियर हो गया। और लास्ट में ये 3 into 90 plus 45, 3 into 90 plus 45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, और तो tan cot में चेंज हो जाएगा। The answer is -1. Is this clear to everyone now? Yes, sir. Yes, Lakshya, सर अगर माइनस होता तो बस हम आगे, अगर सपोज माइनस होता है यहाँ, तो यहाँ पे माइनस आता आगे, तो फिर आगे माइनस रहता, तो आंसर माइनस होता है। मतलब हमको देखो ये माइनस से इसके लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देखो और एक और चीज, आज मैंने बहुत कुछ बता दिया, तो अभी माइनस प्लस वाला बात पे अभी आज मैं नहीं देना जाना चाहता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि जितना आज मैंने बता दिया ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। आज मैं चाहता हूँ कि पहले इतना सब चीज अपने दिमाग में ले लो सब कुछ, और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि अगर बाहर माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बिकॉज अगर हम आज एक बार में सब कुछ बता देंगे ना, सब पजल हो जाओगे तुम। सो लीव टिल हियर ऑन, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट माइनस, वो हम नेक्स्ट डे बताना चाहते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जितना आज मैंने टॉपिक करा है, मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक का वीडियो को वापस एक बार देखो, और जो मैं समझ दे रहा हूँ उसको रिपीट करो तुम लोग, और होमवर्क को आज ही सेंड करो, क्योंकि कल ही क्लास है। Number 9. यस सर नंबर 9 ना पूरा। नहीं, मैं बताऊंगा होमवर्क क्या है, आई जस्ट सेड।